Good morning, students. I hope you all are safe at your homes, doing all your maths practice regularly. Students, today I am going to explain you exercise 17B and 17C. Okay, so without wasting our time, let's start with the video. In exercise 17B, you have to add measures of mass, right? So we learn about addition के बारे में हम लोग समझेंगे. Let me just write one question for all of you. Question number A का first का A part which is there in your book. Grams में आपको given है and 428 gram is the first value which is given. After this we have 397. So I will write 7 first, then 9 and then 3. As I told you, हमेशा वंस प्लेस पहले लिखना है जब आप सेकेंड डिजिट को यूज़ कर रहे हो. 8 + 7 इज़ 15 का 5 1 कैरी. 1 + 2 3 3 + 9 12 होता है. 12 का 2 1 कैरी. 1 + 4 5 5 और 3 8. So what answer you will get? You will get 825 gram as your answer. Is it clear? Let me just take D part now, in which kilograms and grams are there. Okay. So you can see that in kilograms you have 156 and in grams you have 574. After this there is 468. So I just write 8 first, then 6 and then 4. Then you have 256. So I will write 6, then 5, then 2. Now you have to add the numbers. 6 + 4 is 10 ka 0, 1 carry. 1 + 7 8, 8 + 5 is 13 ka 3, 1 carry. 1 + 5 6, 6 + 2 is 8. So this will be 830 grams. 6 + 8 is 14 ka 4, 1 carry. 1 + 5 6, 6 + 6 is 12 ka 2, 1 carry. 1 + 1 2, 2 + 4 6. So your answer will be 624 kg for 624 kg and 830 grams. This will be your right answer. Is it clear? Now let's come to our question number 2. ऑलरेडी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बट स्टिल आई वॉन्ट टू डू इट. क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हम लोग करते हैं जो थोड़ा सा बड़ा सा है और उसमें आपको डिफरेंट तरीके भी पता चलेंगे. 276 ग्राम प्लस 159 ग्राम plus 98 grams and then plus 208 gram you have to do. So gram is there, then you have to write the values 276. इसके बाद जब आप सेकेंड वैल्यू नोट करोगे तो पहले वंस डिजिट, फिर टेंस डिजिट और फिर 100 डिजिट. वंस डिजिट, टेंस डिजिट, वंस डिजिट, टेंस डिजिट, 100 digit. Now you have to add all of them. As you can see, no value is there in front of 9, so you have to put 1 0 in order to fill the vacant place. 6 + 9 होता है 15. 15 + 8 करो 23. 23 + 8 is 31 का 1 कैरी हुआ 3. 3 और 7 10. 10 + 5 15. 15 और 9 24 का 4 कैरी हुआ 2. 2 2 ज़ा 4. 2 + 2 4 5 6 7. So your answer is 741 grams. Question which we have is question number 3, B part. 57 kg plus 49 kg plus 375 kg. Here kilogram is given to you. The very first value is 57, then you have 49, तो just write 9 and then 4. Then you have 375, तो पहले 5 लिखो, फिर 7 and then 3. Now you can see that 100 place यहाँ पे भी missing है और यहाँ पे भी. तो just put, you all have to add all the digits. Let's add them. 9 + 7 is 16. 16 + 5 is 21 का 1 carry 2. 2 + 5 7. 7 + 4 11. 11 और 7 होता है 18 का 8 1 carry. 1 + 3 is 4. So your answer here will be 481 kilograms. Right? So you can just add the numbers while putting them in columns. Is it clear? Now question number 4, C part. 26 kilogram 349 grams को add करना है with 157 kilogram 50 ग्राम प्लस 37 किलोग्राम एंड 8 ग्राम. तो आपको यहाँ पे सेपरेट करना है ऑब्वियसली किलोग्राम और ग्राम्स को. सबसे पहले डिजिट्स लिखी 27 किलोग्राम 349 ग्राम्स. इसके बाद है आपके पास 157. तो बेटा पहले 7 लिखना, फिर 5 एंड देन 1. उसके बाद यू हैव 50, तो जस्ट राइट 0 फर्स्ट एंड देन 5. देन वी हैव 37 kg, तो जस्ट राइट 7 एंड 3. देन वी हैव 8 grams. Now you can see so many vacant places are there, so just fill them with 0. And you will not find any mistake while doing these questions like this method. Okay,
9 + 8 is 17 का 7 का 7 कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 5 is 10 का 0, 1 कैरी, 3 + 1 is 4. So 407 grams you will get. 6 + 7 13, 13 + 7 is 21 का 1 कैरी 2, 2 + 2 is 4, 4 + 5 is 9, 9 और 3 12 का 2, 1 carry, 1 + 1 is 2. So your solution will be 221 kilogram 407 gram. Is it clear? Now we have subtraction portion in this exercise, and question number 5 ka B part I am taking with you, in which kilograms are given. 271 is there, and then you have 85, so you have to subtract it with 85. It is already mentioned in your question. Okay, हमने इसको columns में arrange नहीं किया है. 1 में से 5 नहीं जाएगा तो आप इसमें से borrow लोगे. 11 minus 5 will be 6. 6 minus 8 cannot be possible, so 16 minus 8 is 8 and 1. So your solution will be 186 kilograms. Fine. Now let me just take another example of D part, in which kilograms and grams are separated. In kilograms you have 849 kilograms, and in grams 678 grams. Then you have 569. This is already given, that's why I am not writing it accordingly. So this is already given in your question. So 8 minus 7 1 होता है, right? Then 7 minus 8 is not possible, तो हम borrow करेंगे, ये बन जाएगा 17. 17 minus 8 is 9. 5 में से 2 गया 3, 391 ग्राम. 9 minus 9 is 0. 4 minus 6 नहीं कर सकते हो, तो आपने borrow किया, बन गया 14. 14 में से 6 subtract किया, you will get 8. 7 minus 5 is 2. So your correct answer is 280 kilogram 391 grams. Is it clear? इसके बाद बेटा 6th और 7th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है. मैं एक एक पार्ट आप लोगों को समझा देती हूँ. जैसे आपका डी पार्ट है, 606 ग्राम्स में से आपको 315 ग्राम सब्ट्रैक्ट करना है. तो बहुत इजीली आप 606 में से 315 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. 6 minus 5 1, 10 minus 1 is not possible, तो just take 5 here. This will become 10. हमने borrow किया. 10 minus 1 is 9 and 5 minus 3 is 2. So clearly you will get your answer, which is 291 grams, right? ऐसे ही आप 7th क्वेश्चन का पार्ट करते हो. चलो लेट्स डू इट. सी पार्ट कर लेते हैं. in which 3465 kilogram is there. You have to subtract it with 769 kilograms. ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले फर्स्ट डिजिट लिखोगे विच इज़ 3465. जब आप सेकेंड डिजिट नोट करोगे तो लास्ट से नोट करोगे. देखोगे 1000 वैल्यू नहीं है तो 0 लगाओ. 5 minus 9 आप नहीं कर सकते हो, आपने बोरो किया. दिस विल बिकम 15. 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, 6 यू विल गेट, राइट. 5 minus 6 नहीं ले सकते हो, आपने बोरो किया. दिस विल बिकम 15. 15 में से 6 गया 9. 3 minus 7 फिर से नहीं ले सकते हो, 13. 13 में से 7 गया 6 एंड 2 minus 0 is 2. तो आपका कितना सॉल्यूशन आया? 2696 किलोग्राम. दिस इज़ योर राइट आंसर हियर, राइट. इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8. सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बस मैंने एक आपका डी पार्ट नोट किया है जिसमें आपके एक पार्ट में तो किलोग्राम है, दूसरे में नहीं है. तो लेट्स सी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. किलोग्राम्स और ग्राम्स को सेपरेट किया. सबसे पहले 450 किलोग्राम्स आपको गिवन है, 642 ग्राम्स आपको गिवन है. देन आप देख सकते हो कि सिर्फ आपको 187 ग्राम्स गिवन है, किलोग्राम्स नहीं है, तो वहाँ 0 पुट करो. नाउ सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. 2 minus 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 3 लो, 4 3 हो जाएगा. 2 विल बिकम 12. आपने बोरो किया. 12 minus 7 is 5. 3 minus 8 आप नहीं कर सकते तो आपने फिर से यहाँ पे बोरो किया. 13 minus 8 करो, you will have 5, right. 5 minus 1 is 4. So 455 grams और this will become similar 450 kilograms. समझ आया. तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपका किलोग्राम्स या ग्राम्स नहीं है तो उस प्लेस पे आप जीरोस पुट करेंगे. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, तो ट्राई करो उनको करने की. ये एक्सरसाइज यहीं ओवर होती है. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 17C. इन एक्सरसाइज 17C यू हैव मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस. ठीक है, हम इसमें मल्टीप्लाई के क्वेश्चन समझेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको ग्राम्स में गिवन है 142 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 3. सिंपल है, जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स मल्टीप्लाई करते हो. 3 2 6, 3 4 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 3 एंड 1 4, 426 ग्राम्स. बस इस ग्राम को पुट करना मत भूलिएगा. ठीक, अब जैसे मैं यहीं पे आपका अगर सी पार्ट लूँ जिसमें किलोग्राम और ग्राम दोनों गिवन है, यहाँ पे लिखा है 3 किलोग्राम 276 ग्राम्स.
मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो इसको कैसे करेंगे। 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी। 3 7 जा 21 और 1 22 का 2, 2 कैरी। 3 2 जा 6 और 2 8, 828 हो गया ग्राम। 3 3 जा 9, 9 क्या था, किलोग्राम। तो बस किलोग्राम और ग्राम में ध्यान रखना, जब नंबर की मल्टीप्लाई ग्राम्स के साथ कर रहे हो तो ग्राम की यूनिट लगाओ, जब नंबर की मल्टीप्लाई किलोग्राम के साथ कर रहे हो तो किलोग्राम की यूनिट लगाओ, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, बी पार्ट, 125 ग्राम को आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से, है ना। तो आप कैसे करोगे, आपने 125 लिखा, 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा 35 का 5, कैरी हुआ 3। 7 2 जा 14 और 3, 17 का 7, कैरी हुआ 1। 7 1 जा 7 और 1 8, तो 875 ग्राम आपका आंसर आया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट करते हैं, जैसे सी पार्ट किया, 568 किलोग्राम को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी, 568 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 8 जा 48 का 8, कैरी हुआ 4। 6 6 जा 36 और 4, 40 का 0, कैरी हुआ 4। 6 5 जा 30 और 4, 34। फिर से चेक करते हैं, 6 8 जा 48 का 8, कैरी हुआ 4। 6 6 जा 36 और 4, 40, 0, कैरी हुआ 4। 6 5 जा 30 और 34। तो आपका आंसर आया 3408 किलोग्राम। समझ में आया। तो क्वेश्चन में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह आपको मल्टीप्लाई करना है। एक क्वेश्चन नंबर 4 का भी कर लेते हैं। लेट्स से ए पार्ट में आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, जो है 23 किलोग्राम 255 ग्राम्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जस्ट सेपरेट करो कॉलम्स को। 23 किलोग्राम 255 ग्राम्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी। 3 5 जा 15 और 1 16 का 6, 1 कैरी। 3 2 जा 6 और 1 7, तो 765 ग्राम्स, ग्राम्स आएगा बच्चा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 किलोग्राम। जब आप ग्राम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ग्राम मिलेगा, और जब आप किलोग्राम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको किलोग्राम मिलेगा। समझ आया। इसी का मैं एक और पार्ट आपको समझाती हूँ, विच इज़ एफ पार्ट। 3245 किलोग्राम 296 ग्राम्स को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो किलोग्राम और ग्राम को सेपरेट आउट किया, 3245 296 मल्टीप्लाई करना है 3 से। लेट्स मल्टीप्लाई। 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी। 3 9 जा 27 और 1 28 का 8, कैरी हुआ 2। 3 2 जा 6 और 2 कितना होता है 8, 888 ग्राम्स। ठीक है। अब आपको करना है इसको सेकंड पार्ट के साथ। 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी। 3 4 जा 20 और 1 21, कैरी हुआ 2। 3 4 जा 12 होता है, 12 और प्लस 1 13 का 3, 1 कैरी। 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9। ठीक है। तो आपका कितना आंसर आएगा, 9735 किलोग्राम 888 ग्राम्स। ठीक है। हमेशा अपने आंसर्स को 2 बार रिपीट कीजिएगा, फिर से ट्राई कीजिएगा, और आप बहुत अच्छे से उसको कर पाओगे। ठीक है। चलो, अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू ऑन योर ओन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डिवाइडिंग masses. Okay, so take care everybody. Goodbye.